Hello students, this is me Prakash sir. Welcome to Enic Educare Academy. Today we are going to do Science 2 Chapter 1 Heredity and Evolution. In this last lecture we have already done with heredity and heredity changes, in which we have already seen transcription, translation and translocation, and now we are going to today I am going to teach you evolution and theory of evolution and evidence of evolution. There are total 6 evidence of evolution, in which only 2 evidences I am going to cover, that is morphological evidence and anatomical evidence. So let us start with the topic evidence. So our next topic is students evolution. Before that some questions are asked, can you recall? First of all students, these questions may not be asked in the board exam, because they have told us can you recall means it is based on the standard 9th, but here these questions are, I can say definitely that this some of the questions are related to 10 standard, so that's why I am doing this. So first question is, what is the function of the appendix of our digestive system? See students, in our digestive system, in every human body, whether it's a male or female, there is an appendix at the end of the large intestine. I can show you in the figure. Suppose this is a large intestine. Large intestine, there is some curved bent part, so this is called as appendix. This is called as appendix. So this appendix, what is the function of this appendix? So this appendix, in when we were ape, we used to eat roots, plants, leaves, etc. So at that time appendix used to digest the cellulose present in the leaves. But right now we are not eating raw foods, we are eating cooked food. Therefore right now appendix has no function. It is a vestigial organ. Vestigial organ means which is functionless, which is present in the body, organ which is present in the body but it is not functioning. So that organ is called as vestigial organ. So as we are dealing with the vestigial organ in this chapter, so we have to keep this answer in mind. Question number 2, are our wisdom teeth really useful for chewing the food? So definitely we are having 32 teeth. Adult is having 32 teeth, but at the child age we are having 28 teeth, or maybe less than that. But if suppose adult is having 26 teeth, then there may not be any difference in chewing the food. So wisdom teeth may or may not be there. It is not a big question, but right now we can say if wisdom teeth are not there, then we can say that it will do, we can chew our food very well. Therefore wisdom teeth are not really useful for chewing the food. It is again a vestigial organ. Question number 3, why did the huge animals like dinosaur become extinct? So here there is a big this question. So answer is, we can say dinosaur could not adapt the environment in which they were trying to live. This is one of the answer we can say. And there was a beginning of ice age. आइस एज की शुरुआत हो चुकी थी. देयर वाज अ स्कैसिटी ऑफ फूड. अभी ये ऐसा माना जाता है कि देयर वाज मैट्योर विच कोलाइड्स विद द अर्थ. मैट्योर जो है अर्थ के साथ कोलाइड हुआ था. ड्यू टू दिस बहुत सारा डस्ट हवा में उड़ा था, तो बिकॉज ऑफ द इट कवर्स द एटमॉस्फेयर, तो उसके वजह से जो ग्रीनरी थी, ग्रीनरी जो है वह सूख गई, और जो ग्रीनरी के वजह से जो एनिमल्स उस पर ग्रीन प्लांट्स पे जीते थे, हर्बीवरस, वह भी एक्सटिंक्ट हो गए. और उसके वजह से डायनासोर्स जो कार्निवरस थे, जो उनके ऊपर डिपेंड करते थे लिविंग फूड के लिए,
तो वह भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए एंड this resulted in the catastrophic death of the dinosaur. Okay, so now moving on to question number 4. Why are many species of animals and birds getting extinct? So species means students a kind of animal or group of animals which resembles the same body structure, same होता है all same. जैसे कि आप अगर मैं कहूँ फिश, तो फिश में आप देखते हैं एक बड़ा लार्ज जो है फिश होता है वो वेल होता है, सबसे छोटा फिश राहू और बहुत सारे बांगड़ा, ये सब हम लोग फिश खाते. ऑल बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, वेदर इट इज़ अ बिग फिश और वेदर इट इज़ अ स्मॉल फिश, ऑल बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज़. हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि वेल जो है वो एक मैमल है, लेकिन वो समुंदर में रहता है. और अगर आप दूसरा मैं बात करूँ तो अबाउट स्नेक, तो स्नेक आप देखते हैं कोई स्नेक हरा होता है, कोई स्नेक काला होता है, कोई ज़्यादा जहरीला होता है, कोई रेगिस्तान में रहता है. दे आर ऑल स्नेक बट दे आर एडेप्टेड टू डिफरेंट लिविंग डिफरेंट सराउंडिंग, बट देन ऑल्सो दे आर belong to same species, though their color is different, they belong to the same species. तो टाइगर के बारे में बात कहेंगे तो टाइगर सारे टाइप के टाइगर, उल्फ के बारे में बात करेंगे, उल्फ डॉग्स ये सब जो है ये सेम स्पीशीज़ में आ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन से इसका आंसर देयर आर हाउ इसका आंसर ऐसे होगा कि देयर इज़ अ कंटिन्यूस एंड रैपिड चेंज इन द एनवायरनमेंट विच इज़ कॉजिंग थ्रेट टू द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स. तो रैपिड और कंटिन्यूस चेंज एनवायरनमेंट में होने के वजह से ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको एक थ्रेटन होने लगा, उनको उनकी जो स्पीशीज़ जो है वह कम होने लग गई, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर चेंज होने लगा तो वह अडेप्ट नहीं कर पाए और उसके वजह से कुछ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो है वह धीरे धीरे करके कम होते 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 एक्सटिंक्ट हो गए. तो उसमें फैक्टर्स देखेंगे तो पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हो गया, और हम तो आप देख रहे कि इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हम गांव को तो मतलब कॉन्क्रीटाइज कर रहे हैं और फिर उसके वजह से जो भी पंछी है, जो भी एनिमल्स है वो सारे वहाँ के धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ रहे या फिर वहीं पर जो है धीरे धीरे रहने की कोशिश कर रहे और वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे. तो दीज आर द फैक्टर्स कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ फूड. तो इसकी वजह से फूड शेल्टर एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए अवेलेबल नहीं हुआ शहरों में. एंड और एक चीज़ के बारे में अगर कहूँ तो हंटिंग एंड पोकिंग जो है यह भी एक कारण है विच रिजल्टेड इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हम बढ़ते हैं अभी अगला टॉपिक जो है हमारा इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल चेंज. ग्रेजुअल मतलब क्या? स्लोली एंड कंटिन्यूसली इन अ सिस्टमैटिक मैनर. तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेजुअल चेंज. तो दैट ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कि इसको शायद लाखों साल लगेंगे. ऐसे नहीं कि 2 महीने में हो गया, 1 महीने में हो गया या 1 साल में हो गया. इट इज़ नॉट पॉसिबल. So that is why evolution is a gradual change occurring in a living organism over a long duration. तो this is a very slow going process. मैंने आपको कहा था बहुत slow process है, इसलिए मैंने कहा था इसको कि it takes lakhs of years for the gradual change to take place in the living organism. Okay, so this through which development of organism is achieved. अभी ये जो evolution जो process है ये धीरे धीरे होगा और ग्रेजुअल चेंज होगा इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो वाई दिस हैपेंस बिकॉज टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट चेंज होते जाता है. तो साथ ही साथ हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको अगर उस एनवायरनमेंट में रहना होगा तो उनके अंदर के जो जीन्स जो होते हैं वह जीन्स को भी थोड़ा सा बदलना होगा, थोड़ा सा चेंज होना होगा ताकि वह लिविंग एनवायरनमेंट जो है एडेप्ट कर सके. तो दैट इज़ वाई ये एडेप्टेशन के वजह से धीरे धीरे जो है अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन हो रहा है और वो होता रहेगा.
तो ऑल द स्टेजेस in change occurred in various components ranging from stars and planets in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. तो evolution जो है ये यहाँ पर दिया गया, evolution is a gradual change occurring in the living organism. तो यहाँ पर बताया living organism में gradual change जो होता है उसे हम इवोल्यूशन कहेंगे, लेकिन हम इवोल्यूशन के स्टडी में जो है हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को नहीं लेंगे, बल्कि स्टार्स, प्लैनेट्स जो स्पेस में होते हैं उसे भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वह भी एक तरह का पार्ट है, मतलब कि कंपोनेंट है। और हमारे अर्थ जो है, अर्थ खुद एक बायोस्फीयर है। सो यह सारे चीज़ों को हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हम इवोल्यूशन को स्टडी कर पाएंगे। ओके, सो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के में जो चेंजेस आए हैं सदियों से, लाखों सालों से, उसको स्टडी करना इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, बल्कि स्टार्स, प्लैनेट, स्पेस, बायोस्फीयर ऑफ द अर्थ, इसमें यह भी कंपोनेंट्स जो होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं विच नीड्स टू बी स्टडी इन द स्टडी ऑफ evolution. Okay, so now formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, फिर धीरे 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 कुछ नया एनिमल उससे डेवलप होगा जो अलग दिखता होगा, लेकिन थोड़ा सा वह पहले वाले एनिमल से रिजेंबल करता होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो उसमें आप देख रहे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, जैसे आप वाइट चूहा देखे रहेंगे, तो वाइट चूहा तो चूहे की तरह ही रहता है, रैट, लेकिन वह वाइट होता है। तो वह जो है ऑल ऑफ अ सडन वाइट नहीं हुआ, वह धीरे 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 इट टेक्स अगेन लैक्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तब जाके वह चूहे की तरह सारे कैरेक्टर्स उसमें है, लेकिन उसका कलर जो है वो चूहा है। वाइट टाइगर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन धीरे धीरे चेंजेस होने की वजह से यह न्यू स्पीसीज जो है वह डेवलप हो गई है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यह रिस्पॉन्स है टू द नेचुरल सिलेक्शन। अभी नेचर है, नेचर में कोई भी चीज़ जब होती है तो वह एडप्ट करती है, एडप्ट करने के बाद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो वह सर्वाइव कर पाएगा। सो सर्वाइव कर पाएगा, और सर्वाइव कर पाएगा तो इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज होती रहेगी। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैरा। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ हैड बीन नॉन एक्सटिंक्ट ऑन द अर्थ। तो अभी देखिए 3.5 बिलियन ईयर्स अगो की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि देर इज़ नो लाइफ ऑन द अर्थ दैट टाइम। तो वह लाइफ जो है मौजूद ही नहीं था। तो फिर हम कैसे आज जीवित है, या फिर हम एक्सटिंक्ट होने के बजाय आज हम कैसे धरती पर हमारा अस्तित्व है, या फिर कोई जानवर का अस्तित्व है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाएगा तो प्लांट्स भी आ गए। तो धीरे धीरे ये प्लांट्स और फिर ये ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये सब धीरे धीरे जो है वो कैसे क्या एक्सटिंक्ट होने के बजाय वह धरती पे है। तो उसका अभी जवाब ढूंढना है, देखेंगे कि कैसे हम धरती पे अवेलेबल, धरती पे हम मौजूद है कौन से थियरी के हिसाब से। तो आज जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इट इज़ मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें मौजूद है। तो क्या डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पहले से है, धरती पर मौजूद थे, या फिर नहीं थे? तो फिर धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स कैसे हुए? तो डेफिनेटली सिंपल से कॉम्प्लेक्स हुए रहेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन सेज दैट एट द बिगिनिंग देयर मे हैव बीन ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशन ऑन द अर्थ एंड सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज। तो लिखा गया कि शुरुआत में क्या हुआ था कि सिंपल एलिमेंट्स है। अभी डेफिनेटली अर्थ है, अर्थ के ऊपर सॉइल है, फिर तभी जो है ओशंस भी थे। तो सिर्फ लैंड और ओशंस थे। ओके, तो लैंड और ओशंस मौजूद थे, तो डेफिनेटली उसके अंदर मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स मौजूद होंगे। तो दैट सिंपल
काइंड ऑफ एलिमेंट्स मौजूद थे, कहाँ पर, ओशन में एंड ऑन द अर्थ। और यह जो सिंपल टाइप के जो एलिमेंट्स थे वो दो टाइप के थे, एक ऑर्गेनिक टाइप्स और एक दूसरा इनऑर्गेनिक टाइप। और यह दोनों जो है ये दोनों फॉर्म हो चुके होंगे, कैसे, ये दोनों कैसे हो चुके, फॉर्म फ्रॉम मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम दोज सिंपल एलिमेंट्स। तो सिंपल एलिमेंट से क्या क्या बना, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अब ये complex compound like protein and nucleic acid may have from over the long period from those simple compounds। तो अभी सिंपल चीज़ें हैं तो धीरे धीरे जब सिंपल चीज़ें जब हम एक चीज़ में जब दूसरी चीज़ मिलाते हैं तो सिंपल और सिंपल मिलके धीरे धीरे और एक सिंपल चीज़ मिलके, तीन सिंपल चीज़ मिलके क्या हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाती है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बना और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पर क्या क्या बताया गया है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड हाउ दे आर फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम दोज सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड से वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन से हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड। ओके, सो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound। अभी सिंपल एलिमेंट से दो चीज़ें बनी थी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी यह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन की वजह से क्या हुआ होगा कि फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, तो एक सेल बना होगा जो मैंने आपको कल डायग्राम में बताया कि यह एक सेल होता है, यह एक सेल होता है। ये एनिमल सेल हो सकता है, एनिमल सेल है सपोज, तो उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या मौजूद होता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये है एक लिविंग सेल है। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ लिविंग सेल। तो ये एक सेल प्रिमिटिव टाइप, तो ये सबसे पहले एक सेल का जन्म हुआ होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ओके, और यह जो है फॉर्म हुआ होगा फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कैसे बना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर की वजह से। ओके, सो नाउ number of those cells have been increased at the cost of surrounding chemicals। तो अभी एक ही सेल था, तो अभी उसके दो चार सेल बने। अभी डेफिनेटली अभी यूनिसेलुलर, एक सेल मतलब यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल्स मतलब दो से ज़्यादा सेल्स मतलब मल्टी सेलुलर। अभी एक सेल प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल तो बन गया था, अभी नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज। अभी वही सेल्स क्या हो गए, दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से आठ हो गए, इस तरह से बढ़ते गए एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल। तो केमिकल उसके आसपास जो थे वो ऐसा फूड करके वह उनको नर्चर करने लग गए। मतलब जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी बढ़ती है, हमारा जो कैपेसिटी जो है वह बढ़ता है, वी नीड्स एनर्जी। तो उसी तरह से यह एक प्रिमिटिव सेल को सराउंडिंग के वजह से उसको एक तरह का फूड मिला रहेगा, और वह जो है सेल जो है एक का दो, दो का चार और चार के आठ, ऐसे बनते बनते क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए। ओके, सो देयर हैड बीन सम डिफरेंसेस अमंग दोज सेल्स। और यह जो सेल है, सेल में क्या हो गया, डिफरेंसेस आने लगे। डिफरेंसेस मतलब सेल्स अलग अलग टाइप के बनने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ। और नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब, मैंने आपको कहा था नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जो फिट होता है, जो सबसे बेस्ट होता है वही सर्वाइव कर पाएगा, वही रह पाएगा। डेफिनेटली अभी हम समझो दो फ्रेंड्स है और दोनों ने एक ही मॉडल पे हमने काम किया, तो डेफिनेटली जिसका मॉडल अच्छा होगा तो बॉस उसी का मॉडल क्या करेगा, अप्रूव करेगा। तो इसका मतलब कि मेरा जॉब जो है वो पक्का हुआ। तो उसी हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे सेल्स तो बन गए, लेकिन उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, और जो सर्वाइव कर पाए वो उनका आगे लेवल में वो हो गए, और जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो धीरे धीरे क्या हो गए होंगे, पेरिश हो गए रहेंगे, और कहीं ना कहीं तो नष्ट हो गए रहेंगे। ओके, तो सेल अभी
अगर हमें सरवाइव करना है तो हम लोग कुछ हमारे रहन सहन में बदलाव करते, तो उसी तरह से सेल में भी डिफरेंसेस हुए और कुछ डिफरेंसेस हुए, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो जो जो सेल में अच्छी चीज़ मतलब कैपेसिटी सेल की अगर अच्छी होगी तो वो गुड ग्रोथ हो गए, उनका ग्रोथ हुआ, और जो जिनमें ग्रोथ नहीं हुआ तो सम में हैव पेरिस्ड विच कुड नॉट एडजस्ट विद द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए तो वो क्या हो गया, पेरिश हो गए। पेरिश होना मतलब कि वह नष्ट हो जाना, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाना। तो हियर इट इज़ गिवन अ पीक इनटू हिस्ट्री। Many philosophers and religious scholars have written their views about the formation of life। तो बहुत सारे फिलोसोफर और रिलीजियस स्कॉलर जो हर एक लोगों ने जो स्कॉलर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, उन्होंने अपना अपना व्यू जो है वो एक बुक में लिख के रखा है कि जीवन जो है वो पृथ्वी पर किस तरह से फॉर्म हुई होगी। हर एक की थियोरी अलग अलग है, हर एक की थियोरी को अप्रूव नहीं किया गया, पर उनका ऐसा जो मानना था उन्होंने अपने विचार जो है उन्होंने दुनिया के सामने रखे थे, और कुछ ही लोगों के, कुछ ही साइंटिस्ट जो स्कॉलर्स थे उनका एक्सेप्ट किया गया है। अब देखेंगे हम आगे कि किसका एक्सेप्ट किया गया, आगे देखते हैं। देयर सीम्स टू बी अ थॉरो डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में एक लंबा चौड़ा डिस्कशन सालों साल चला इन वेरियस कल्चर्स लाइक इंडियन, चाइनीज़, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा। तो मैंने आपको कहा था हर कंट्रीज़ में इसके बारे में डिस्कशन हुआ होगा, और एक लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ होगा कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, यूनिवर्स के फिर धरती के ऊपर प्लांट्स कैसे आए होंगे, फिर उसमें कौन से एनिमल्स पहले जन्म लिया होगा तो धरती पे लिया होगा कि ओशन में लिया होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा है कि ओशन में कुछ एक्टिविटीज़ हुई, इसकी वजह से प्रिमिटिव सेल डेवलप हुआ था, और उसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए, और जो सर्वाइव कर पाए वो गुड ग्रोथ बताया, और जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो पेरिश हो गए। ओके, तो वेरियस कल्चर्स हैव नोटेड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स, स्टार्स। तो कल्चर्स, बहुत सारे कल्चर्स है, तो उन्होंने क्या किया, नोट किया, और उन्होंने किस बारे में नोट किया कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड द पंच महाभूता लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे आयुर्वेद में कहता है कि हमारा जो शरीर जो है पंच महाभूतों से बना हुआ है, मतलब 5 तत्वों से बना हुआ है एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, स्टोरीज एंड रिलीजियस सेक्रेट बुक। तो ये पोइट्री, स्टोरीज एंड रिलीजियस सेक्रेट बुक में यह बताया गया है कि मतलब जो भी उनका ऑब्जर्वेशन था, जो भी उनका नॉलेज था, वो पोइट्रीज़ में, स्टोरीज़ में और रिलीजियस सेक्रेट बुक में उन्होंने वह लिख के रखा हुआ है। सो नाउ हियर हम देख रहे हैं कि एट प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अभी आप देख रहे हैं स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। तो अभी आप प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे सबसे छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं, छोटे लीव्स वाले, फिर सबसे बड़े बड़े प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि ट्रीज़ होते, फिर सबसे टॉल प्लांट्स भी होते, फिर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कोल्ड कंट्रीज़ में लंबे लंबे होते हैं, उनके जो लीव्स जो होते हैं, रेगिस्तान में जो कैक्टस प्लांट जो होता है उसके लीव्स जो है वो कांटे के फॉर्म में होते हैं, मतलब वहाँ पर लीव्स के जगह पे वहाँ पर कांटा होता है, और वो कांटा जो है वो कैक्टस प्लांट का लीव्स है, पर हमें लगेगा कि वह क्या है, कांटा है, पर दैट इज़ अ लीव्स। तो इस तरह से आप प्लांट्स के जो कई प्रजातियां आप देख रहे होंगे, आपके घर में मनी प्लांट है, आपके घर में और भी बहुत सारे प्लांट्स होंगे, तो ये अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आपने देखा है। और एनिमल्स भी आप देखें तो ह्यूज एनिमल में आप बात कर सकते हैं एलिफेंट की, और सबसे छोटे के बारे में बात करेंगे तो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ रैट, छोटे से कीड़े मकोड़े। तो ये सारे जो है क्रोर्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आज के वक्त जो है धरती पर मौजूद है, और वह सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है दे आर नॉट सिमिलर, उनमें जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको नज़र आएगा, शेप में डिफरेंसेस नज़र आएगा, उनके कॉम्प्लेक्सिटी में आपको डिफरेंसेस नज़र आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी। तो
फिर आगे देखते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जाइंट व्हेल। तो एनिमल के बारे में अगर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी में एनिमल में डिफरेंसेस कितना फ़र्क है एनिमल्स में, तो यहाँ पर बताया गया यूनिसेलुलर अमीबा। तो यह जो एक सेल जो है ये एक ही सेल है, ये एक सेल को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ये अमीबा है, अमीबा सेल। तो अमीबा जो है वह क्या है, एक सेल से बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ वन सेल, और फिर बाद में पैरामेशियम भी एक सेल से बना हुआ है। और पर मैन जो है, मैन और जाइंट व्हेल, मैन और जाइंट व्हेल जो है बहुत सारे सेल से बने हुए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर बॉक्सेस देखेंगे। ओके, तो ये जो बॉक्सेस है, तो वी कैन, एक बॉक्स को अगर हम एक सेल कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम 50 to 100 सेल्स यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर 50, 100, 150, 200 तो इधर ही हो गया। ओके, फिर यहाँ पर या फिर बॉडी के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेल्स। क्या? इन्यूमरेबल नंबर ऑफ सेल्स, और उसे हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मैन और जाइंट कौन से है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द प्लांट, वन सेकेंड, okay, so the plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree। अभी यहाँ पर एनिमल के बारे में बताया था, यूनिसेलुलर में अमीबा एंड पैरामेशियम आया था, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन एंड जाइंट व्हेल आया था। उसी तरह से प्लांट में भी बहुत सारे डाइवर्सिटी है। कोई मतलब बेल की तरह होता है, कोई बरगद का पेड़ की तरह होता है, बहुत मजबूत होता है ना, कोई वीक होता है, कोई टॉल होता है, कि किसी के पत्ते बड़े होते हैं, किसी के पत्ते छोटे होते हैं, किसी प्लांट को फूल आते हैं, किसी प्लांट को फूल नहीं आते। तो ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। ओके, तो इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला। तो क्लोरेला जो ये जो प्लांट है ये यूनिसेलुलर है, और ह्यूज बनियान ट्री जो है ये मल्टी सेलुलर प्लांट है। ओके, तो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ वेरेवर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स। अभी अर्थ है तो अर्थ राउंड है, तो कहीं पर भी आप अर्थ के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर आप लाइफ देख पाओगे। फॉर एग्जांपल आप मतलब बर्फीले जगह पे आप जाओगे तो पहले तो आप देखोगे कि वहाँ पर कोई नहीं, फिर आप देखेंगे वहाँ पर पोलर बियर हो सकता है, तो आप थोड़े दिनों के बाद में आपको शायद दिखाई दे। तो मतलब वहाँ पर लाइफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइस भरा हुआ है और कोई एनिमल नहीं। और आप जाके वहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि पोलर बियर वहाँ पर मौजूद है, मतलब लाइफ वहाँ पर भी एग्जिस्ट होती है, भले हम अर्थ के कोई भी पार्ट पर हम ऑब्जर्व करें, तो इक्वेटर हो या पोल्स हो। तो नाउ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एक्सेट्रा। तो डेफिनेटली अभी मैंने आपको कहा कि इक्वेटर और पोल्स पे मौजूद है, तो डेफिनेटली हवा में ऑर्गेनिजम्स मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाटर में भी इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, और फिर सम काइंड ऑफ इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। लैंड में तो इंसेक्ट्स तो होते ही है, और फिर ह्यूमन बीइंग भी उसमें आ गया। और रॉक्स मतलब क्या, एक बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं माउंटेन में, वहाँ पर भी आप कुछ तरह की मतलब इंसेक्ट्स देख पाओगे, स्नेक देख पाओगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स देख पाओगे, कुछ एनिमल्स देख पाओगे। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट at the equator, poles, even at the air, water, land, rock, etc. Okay, so humans have shown curiosity about origin of life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period। तो ह्यूमन जो है बहुत क्यूरियस है। कभी कभी स्टूडेंट्स आपको भी सोच में पढ़ते रहेंगे कि हम तो पैदा हो गए, लेकिन जब इतने सालों से, जब करोड़्स ऑफ ईयर्स के पहले जब धरती थी, जब हमारे माता पिता जब कहते हैं, तो उस वक्त जो है कौन रहा होगा,
कैसे रहे होंगे, फिर उनसे उनको किसने जन्म दिया होगा, फिर उन्होंने किसको जन्म दिया रहेगा, फिर इतना सारा क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में आता होगा कि तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी किस बारे में, कि वही कि हम कैसे, मतलब हमारे से पहले जो लाइफ में जो धरती पे जो ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, वह जो ओरिजिन है लाइफ का, जैसे कि यहाँ पर ऊपर बताया गया था कि ओशन में लाइफ एक सेल का जन्म हुआ था, तो उसी तरह से तो कैसे कैसे हुआ होगा, या फिर पढ़ने के बाद आपको पता चला कि ओशन में प्रिमिटिव सेल का जन्म हुआ था, तो वह ओरिजिन के बारे में। और डेफिनेटली इवोल्यूशन होता गया है ईयर आफ्टर ईयर, और दिस हैव बीन प्रोपोज्ड origin of life and reason for such a great diversity। और डाइवर्सिटी तो है ही इन लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सिंस एंशियंट पीरियड। तो ये पहले से ही हम सोच रहे हैं। आज हम अगर ये सवाल सोच रहे हैं तो कई हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले भी यही सवाल लोग सोचते थे कि मतलब ये सारे जो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा और कैसे हुआ होगा। तो उसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स लोग हैं, अगेन डिफरेंट थियरीज रखी है, डिफरेंट थियरीज अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। तो ऐसे ऐसे हुआ होगा और फिर बाद में इवोल्यूशन हुआ होगा, हैव बीन प्रोपोज टिल टुडे, ऑफ विच थियोरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सेप्टेड। तो बहुत सारे थियोरी, बहुत सारे स्कॉलर्स लोगों ने सामने रखी, डिस्कशन हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ के स्कॉलर्स लोग साथ में आए, उन्होंने बहुत दिनों तक डिस्कशन किया, और फिर तभी एक थियोरी जो किसी बंदे ने रखा होगा, उसका नाम था ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह जो थियोरी है यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो इतना आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टू थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म। तो अभी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह जो थियोरी है, ये थियोरी के हिसाब से क्या हुआ, देखो कि फर्स्ट लिविंग मटेरियल मतलब जैसे अभी हम जिंदा है, ओके, वी आर लिविंग, जो प्लांट्स लिविंग थिंग है, तो ऐसे लिविंग थिंग जो पहले जो धरती पे हुआ होगा, तो दैट लिविंग थिंग इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये थियोरी के हिसाब से प्रोटोप्लाज्म जो है ये पहला लिविंग थिंग है। ओके, तो हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशन, तो वो हमने यहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा है। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम साल बीतते गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था पहले सिंपल एलिमेंट्स थे ओशन में, और दो तीन सिंपल एलिमेंट्स या बहुत सारे सिंपल एलिमेंट्स मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गए। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने, कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल क्या बताया था मैंने, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, और फिर उसके वजह से और आगे कुछ समय के बाद क्या बना था, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना था। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस होने के बाद में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद में क्या हुआ, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल हुआ। तो चेंजेस ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वेर फॉर्म। तो पहले जो है मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये कौन सा सेल मैंने बताया, अमीबा सेल। तो अमीबा सेल जो है वो एक ही सेल से बना हुआ है, तो इसमें भी चेंजेस हो गए। इसमें चेंजेस होने की वजह से अब जो एनिमल है वो बहुत सारे सेल से बना, मतलब वो अभी क्या हो गया, मल्टी सेलुलर एनिमल हो गया। मल्टी सेलुलर एनिमल हो गया तो वह क्या, अभी उसको हम कौन सा ऑर्गेनिज्म कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बने होंगे। ओके, तो ऑल दीज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल। तो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन मैंने आपको कहा कि इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज occurring in the living organism, and it is a very slow process. Okay, duration of all these changes is at most 300 crore years। देखो, तो मैंने आपको कहा था कि 2 साल 3 साल 100 साल नहीं, बल्कि 300 करोड़ ईयर्स लगे ये सारे चेंजेस होने में। मतलब
प्रोटोप्लाज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने के लिए 300 करोड़ years लगे, मतलब it takes 300 crore years. So now changes and development in living organism had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution of different types of organism. अब ये जो changes जो है चेंजेस जो हुए और डेवलपमेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हुआ, ये चौतरफा, मतलब हर तरह से, हर एंगल से देखेंगे तो वह डेवलप हुआ और वो मल्टी डायमेंशनल हुआ एंड दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो जैसे कि सपोज एक पहले ऑर्गेनिज्म था वो चपटा था, तो सिर्फ वो चपटा ही था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को आप चारों तरफ से देखेंगे तो अलग अलग तरीके से दिखता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टी डायमेंशनल. और ये किस वजह से हुआ और इसकी वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन होता गया और कहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. ओके, तो हैंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल. तो यह जो ओवरऑल जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे इट टेक्स 300 करोड़ ईयर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड एज इवोल्यूशन. ओके, ये ओवरऑल प्रोसेस को क्या कहेंगे, इवोल्यूशन विच इज़ ऑर्गेनाइजेशनल. ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो अकेला नहीं हुआ बल्कि बहुत सारे चीज़ जो है जब कंट्रीब्यूट किए तब जाके वह इवोल्यूशन हुआ. तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इवोल्यूशन. तो यहाँ पर और एक डेफिनेशन दिया गया है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल में जो भी धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट. और वह डेवलपमेंट एक इंसान में नहीं हुआ बल्कि फ्रॉम एंसेस्टर्स से हुआ है. और हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर रहा है एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन रहा है, और यह सब को हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. तो अभी इवोल्यूशन तो हो रहा है, इट टेक्स अराउंड 300 करोड़ ईयर्स, तो ये आपको पता है, लेकिन फिर भी आप विश्वास कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ पे आप विश्वास कैसे करेंगे, जब आप तब विश्वास करेंगे व्हेन वी हैव द एविडेंस. अभी एविडेंस यहाँ पर किस बात का, इवोल्यूशन का. तो इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में अगर एविडेंस आपको मिला है या मिलेगा या फिर आप किसी के सामने पेश करोगे, देन वी कैन थिंक दैट यस कि इस तरह से इवोल्यूशन हुआ था और ये सच बात है. ओके, तो यहाँ पर जो एविडेंस के तौर पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5-6 एविडेंस दिया गया है. फर्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड इज़ एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड फोर्थ इज़ प्लानियोटोलॉजिकल एविडेंस, and then we will talk about connecting links, and then एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस. तो 6 टाइप ऑफ एविडेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 2 एविडेंसेस. फिर से एक बार मैं कहूँ, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस ये एक तरह का एविडेंस है, और एनाटॉमिकल एविडेंस ये सेकंड एविडेंस है, थर्ड इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ इज़ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, फिफ्थ इज़ कनेक्टिंग लिंक्स, एंड सिक्स्थ इज़ एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस. तो आपको मैं आपको अभी टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ. टेक्स्ट बुक में आपको एक डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पर, वह आपका क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए, तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं. तो दिस एक्सरसाइज हैज़ अ क्वेश्चन, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर उन्होंने खुद से दिया हुआ है सिमिलरिटी इन बोन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस या वेस्टिजियल ऑर्गन. तो यहाँ 2 बॉक्सेस आपको दिए गए, उसमें से आपको आप दो बॉक्सेस दिए, तो टोटल 6 है, उसमें से एक तो गया तो 5 बचे. 5 में से आप कोई भी 2 एविडेंस यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट एविडेंस, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या दिया गया है,
तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। तो इमेजेस दिया गया है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। इसमें आपको क्या करना है, सिमिलैरिटीज़ आपको बतानी है एनिमल इमेजेस में और प्लांट इमेजेस में। तो सिमिलैरिटी क्या है, तो आप देख रहे हैं कि सबका फेस जो है एक जैसे ही है, मतलब कुछ डिफरेंट टाइप का नहीं है। और फिर सब सिमिलर है। इनका नाक देखिए, नोज़, आइज़, ईयर्स में भी सिमिलैरिटीज़ है। ओके, बट दे आर ऑल डिफरेंट एनिमल्स। ऐसे सिमिलैरिटी है मतलब कि वह सेम एनिमल है क्या, इसको हम फॉक्स कहेंगे। तो ओके, इसको हम वी कैन कॉल इट एज गोट, एंड दिस इज़ अ सपोज डॉग। ओके, अगर प्लांट्स में अगर हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स अगेन प्लांट्स में सिमिलरिटी क्या है, दिस पिक्चर, ऑल दिस 3 पिक्चर्स हैव लीव्स। तो लीव्स के थोड़े से स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होगा, लेकिन ऑल हैव लीव्स। ओके, तो यहाँ पर भी शेप में डिफरेंसेस होगा, एनिमल्स में शेप में डिफरेंसेस है। कोई एनिमल शॉर्ट है, कोई एनिमल टॉल है, कोई एनिमल विड्थ वाइज बड़ा होगा, है कि नहीं। तो बट देर इज़ अ सिमिलैरिटी एज वेल एज देर इज़ अ डिसिमिलैरिटी, डिफरेंसेस। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लीव्स तो हर जगह पे तीनों भी पिक्चर में मौजूद है, बट लीव्स किसी के लॉन्ग है, किसी के मीडियम है, तो किसी के शॉर्ट है। एंड ऑल दिस प्लांट्स बेयर फ्रूट्स, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं दे डो नॉट बेयर फ्रूट एट ऑल और नॉट इवन फ्लावर्स ऑल्सो। तो इस तरह से, तो अभी हम मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा। वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आइज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड एयर पेना एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर ऑन बॉडी आर सीन इन दिस एनिमल्स। तो सबके बॉडी पे जो देखो हेयर्स जो है वो थिकली, मतलब बहुत ज़्यादा हेयर्स है। और फिर कान के पोजीशन, आँखों का पोजीशन यहाँ पर दिखाया, माउथ का जो शेप है, स्ट्रक्चर है, और नॉस्ट्रिल्स मैंने आपको बताया था, नाक सबका सेम टाइप का है। तो ये सारे सिमिलैरिटीज़ है। सो आर सीन इन एनिमल्स वेयर एज सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनिएशन, लीफ पिटियोल एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पर लीफ शेप तो आप समझ गए होंगे, लीफ शेप है। इसमें आप छोटी छोटी सी लाइंस देख पा रहे होंगे। तो ये जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम में, तो ये आप लीफ, ये आपका लीफ है। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीफ वेनिएशन कहेंगे। ये रेटिकुलेट होता है, क्या होता है, 2 टाइप के लीफ वेनिएशन होता है, रेटिकुलेट, और फिर अगर आप दूसरा एक प्लांट देखोगे तो उसमें ऐसे वेनिएशन होता है, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल वेनिएशन। क्या कहेंगे, पैरेलल वेनिएशन। ओके, तो 2 टाइप के वेनिएशन है, रेटिकुलेट वेनिएशन एंड पैरेलल वेनिएशन। तो इसमें आप रेटिकुलेट वेनिएशन में जो है वो ऐसा नेट की तरह होगा, एक जाली की तरह होगा। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनिएशन। तो ये अगर जाली की तरह है तो उसको हम रेटिकुलेट, इसमें क्या होगा, सारे वेन्स जो है वो पैरेलल होंगे। तो और लीफ पिटियोल मतलब यहाँ पर, पिटियोल मतलब यहाँ पर जो डंडी जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज पिटियोल। व्हाट इज़ दैट इज़ कॉल्ड एज पिटियोल। ओके, तो इसकी भी होगी। ओके, तो पिटियोल, तो पिटियोल एक्सेट्रा ऑकर इन केस ऑफ प्लांट्स। तो ओके, तो उसमें सिमिलैरिटीज़ है, हर लीफ को डंडी होती है और लीफ का शेप और लीफ का वेनिएशन जो होता है वो सेम होता है। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज इन दोज ग्रुप्स एंड हेंस इट प्रूव्स दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी द सेम एंड मस्ट हैव कॉमन एंसेस्टर। तो अब ये आम का पेड़ है, ये मतलब समझो चीकू का पेड़ है, ये जो है नींबू का पेड़ है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों पेड़ अलग अलग फ्रूट्स बेयर करते हैं, पर इसमें जो लीफ जो है वह सेम स्ट्रक्चर है उनका, उसमें वेनिएशन भी सेम है, उन सबको पिटियोल भी है, पर वह फ्रूट जो है अलग अलग बेयर करते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो कॉमन एंसेस्टर है, मतलब यह जो पेड़ से बने होंगे अलग अलग तरह के अब हो गए, लेकिन पहले वो जिस पेड़ से बने होंगे उनका एंसेस्टर क्या होगा, मतलब वो सेम होगा, कॉमन होगा, राइट? क्या होगा? कॉमन होगा. सो दे हैव अ कॉमन ancestor. Now moving on to next, that is morphological evidence. Morphological evidence, हमने डायग्राम देखा morphological evidence का. अब हम देखेंगे anatomical evidence. Anatomical evidence आप फ्रेंड्स अगर आप डॉक्टरी पढ़ाई अगर आप डॉक्टरी पढ़ाई में एडमिशन ले लेते हो, मेडिकल में एडमिशन ले लेते हो, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट ही होता है एनाटॉमी करके. ओके, तो एनाटॉमी और ये एनाटॉमिकल एविडेंस, तो एनाटॉमी से रिलेटेड क्या एविडेंस पाए गए अभी हम देखेंगे. अभी हम डायग्राम देखिए, यहाँ पर डायग्राम, तो ये मेरे ख्याल से नहीं, ये ह्यूमन हैंड है, वो ह्यूमन हैंड का बोन है ये. और यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर कैट्स 4 लेग, एक कैट का पैर है, और ये पेंटागियम ऑफ बैट, तो बैट का जो पंख जैसा होता है वो है, उसके बोन स्केलेटन है उसका. और ये फ्लिपर ऑफ वेल के जो साइड में जो फ्लिपर होता है वो उसका ये बोन का स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर दिया गया है अच्छी तरह से. नाउ इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर, अगर हम पिक्चर को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो देयर डजंट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमन हैंड, कैट्स 4 लेग, फ्लिपर ऑफ वेल एंड पेंटागियम ऑफ बैट. तो यहाँ पर जो है देखने से तो हमें कुछ सिमिलैरिटी नज़र नहीं आती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही अलग है, ये तो और अलग है, और ये तो फर्स्ट वाले से टोटली अलग है. तो देयर इज़ अ डिसिमिलैरिटी, ये चारों फिगर में डिसिमिलैरिटी है. ओके, बट अगर हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है. सिमिलरली यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट इन रेस्पेक्टिव एनिमल्स. तो यह जो जैसे ये ह्यूमन हैंड है, ये कैट 4 लेग है, ये पेंटागियम ऑफ बैट है, ये फ्लिपर है, इसका जो यूज़ जो है स्टूडेंट्स, इसका जो यूज़ जो है दैट इज़ डिफरेंट. अभी डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वह एनिमल्स डिफरेंट है. अभी डिफरेंट एनिमल्स होगा तो वो अलग तरीके से वह अपने 4 लेग या हैंड या पेंटागियम या फ्लिपर जो है वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा. तो दैट इज़ वाई इफ़ द ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट, दिस स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिया गया, दे विल यूज इट इन डिफरेंट वे. ओके, with respect to type of animal. However, there is a similarity in structure of bones and bony joint in organs of each of those animals. तो अभी देख रहे हैं कि सिमिलैरिटी इनमें क्या है, तो सब बोन से बनाया गया है. क्या बना है? बोन से बनाया गया. बोन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सारे जॉइंट्स है, सारे छोटे छोटे बोन्स जो एक दूसरे को जॉइंट है. यहाँ पर भी 3 बोन से एक बड़े वाले बोन को जॉइंट है. यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जॉइंट है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट, तो मतलब वही बोन्स जहाँ पर जॉइंट होते हैं उसे बोनी जॉइंट कहते हैं. इन द ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल्स, सो दिस सिमिलैरिटीज इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स में हैव कॉमन एंसेस्टर्स. तो आप देख रहे हैं कि यह बोन्स सब में है और बोन के जॉइंट्स भी सब में हैं. तो डेफिनेटली ये एक ऐसे एनिमल से धीरे धीरे ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम यह जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुए रहेंगे, इवॉल्व हुए रहेंगे बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद. तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको कि वह कॉमन एंसेस्टर्स से डेवलप हुए. ओके स्टूडेंट्स, सो तो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए स्टूडेंट्स, विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब ये डेफिनेटली ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है. अगर हायर ऑर्गेनिज्म होता है तो उनमें डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिजम्स हो सकती है एंड सिस्टम्स हो सकता है दैट कैरी सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन. तो हायर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर होगा और डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे जो अलग अलग फंक्शंस कैरी करेंगे. अभी जैसे कि अगर हम थोरेक कैविटी के बारे में बात करेंगे, थोरेक कैविटी में क्या होता है? लंग्स होता है, और फिर बाद में
स्कल, अगर हम स्कल के बारे में बात करेंगे तो स्कल में क्या लोकेट होता है, ब्रेन लोकेट होता है। और फिर अगर हम एब्डोमिनल कैविटी के बारे में बात करेंगे तो एब्डोमिनल में क्या क्या होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यह सारे ऑर्गेनिजम्स हम रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड टू हमने जवाब दिया है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के और ऑर्गन्स होंगे, जो ह्यूमन बीइंग में होंगे वो किसी और में नहीं हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। क्या हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है, हर एक ऑर्गन हमें यूज़फुल है? तो अभी हमने आज के लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि विजडम टीथ हम में हो या ना हो, हमें च्यूइंग ऑफ फूड में कुछ फ़र्क नहीं महसूस होगा, इसलिए वह वेस्टिजियल ऑर्गन है। और अपेंडिक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो अपेंडिक्स भी हमारे बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब उसका कोई महत्व नहीं है। ओके, तो हर एक ऑर्गन जो है वो ज़रूरी, हर एक ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में मौजूद है, पर उसमें से कुछ जो ऑर्गन्स है वो हमारे ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, जो कान जो हमारे बाहर से दिखते हैं, वो कान अगर नहीं होता और एक अगर होल होता तो क्या हमें सुनाई नहीं देता? यस, होल सुनाई देता। तो देयरफॉर ईयर पिना इज़ अगेन अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, तो यहाँ पर ये इज़ ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर इसके बारे में डिटेल में कहूँ तो एवरी इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। फॉर एग्जांपल लीवर जो है बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और यूरिया को स्टोर करता है, वो हमारे बॉडी को इम्पॉर्टेंट है। ब्रेन जो है हमारे सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री हो इनवॉलेंट्री हो। हार्ट जो है हमारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को लिए ज़रूरी होता है। और लंग्स जो है रेस्पायर करता है। किडनी क्या करता है स्टूडेंट्स, वह ब्लड को फिल्टर करता है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वह फिल्टर करके उसको टॉयलेट में यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है और थ्रू टॉयलेट वह हमारे इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो आप देख रहे हैं कि ईच ऑर्गन जो है परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन। तो बहुत कम ऑर्गन्स जो है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अपेंडिक्स, विजडम टीथ, एयर पिना, तो यह जो, या फिर हमारा बॉडी में एक छोटा सा टेल भी है जो जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, तो वह भी एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है। और आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बाकी के एविडेंसेस, दैट इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, और फिर बाद में कनेक्टिंग लिंक्स, और फिर बाद में एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको यह लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल यूनिक एडुकेयर एकेडमी एंड tell your friends, circulate these videos as much as possible to your friends so that they get benefited। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए अगर उनके स्कूल में ऑनलाइन नहीं है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय।